दिख रहा है? दिख रहा है मुझे? Yes, sir. Yes. आता दिखाओ से आता Yes, sir. Chiranjit, Abhinav, they're trying to join. Net is, I think, not okay today. लास्ट क्लास में क्या किया था देखो? लास्ट क्लास Sir, में we'll क्या need किया? some sums related to the application of the formula. Okay, that one we done now. So another one topic is there. All the formulas I have given, hope. Yes, sir. Okay, very good. Now Sir. the last, yes. Sir, last class आपने एक homework दिया था. Find the value of tan 7 1/2 degree. वो एक बार दिखा सकते हैं? Not done. सर किया है लेकिन श्योर नहीं हूँ. 10 7.5 degree, na? Yes, sir. Isn't it? 7.5 degree means that is, you can say 7.5, isn't it? 7.5. 7.5. Okay. So you can write let x equal to 7.5. So what will be twice x then? 15 degree, na? Yes, sir. So like 22.5 we have done, na? Same way we have to do. So you have to write let a or x equal to 7.5 degree. So multiply by 2 both sides. You will get 15 degree. Taking 10 on both sides. 10 twice a equal to what? 10? 15. Am I clear? Yes, sir. So 10 twice a is what? 2 10a. 2 10a divided by 1 minus 10 square a. And what is the formula of 10 15 degree? 2 minus root 3 minus 1. root 3 minus 1 by root 3 plus 1, or it was 2 minus root 3, I think. No? Yes, sir. Okay. Then if I cross multiply it, okay, and 10a you can write again, suppose x, let you will get one quadratic equation equal to x. It will be what? Twice x, 1 minus x square, 2 minus root 3. Am I clear? Yes, sir. Then cross multiply it. Cross multiply. So 1 minus x square, 2 minus root 3, and this side is twice x. Or you can say 2 minus root 3, or like 1 into this, 2 minus root 3, minus x square into this. Take twice x in this side, minus x square, 2 minus root 3, then minus 2x plus 2 minus root 3 equal to 0. Is that okay? Yes, sir. Then multiply by minus sign. This will be then x plus x square. So 2 minus root 3 x square, it will be plus twice x. It will be minus
Am I clear? Then Yes, sir. you have to use that quadratic formula. You can apply. Remember Yes, sir. quadratic formula. Others sir. understand? Others? Yes, sir. Yes, sir. Just now that quadratic formula you apply. That quadratic formula is what? X equal to minus b, na? Plus minus root over b square minus 4 into this 2 minus root 3 and then minus this. So minus it will be plus 2 minus root 3. Am I clear? Divided by twice a. Understood? Yes, sir. Then it will be 2 into 2 minus root 3. It will be 4 plus 4 into, this is a minus b whole square, you can write. 2 square is 4 plus root 3 square is 3 minus twice a b. It will be 4 root 3. So 2 minus root 3 minus 2 plus minus, it will be 4 plus 4 into, so 7 minus 4 root 3. Understood? Yes, sir. Then after that, just one simple calculation is there. Minus 2 plus minus 4 plus 4 7 ja 28 minus 4 4 ja 16 root 3 divided by 2 into 2 minus root 3. Is that okay? Any doubt? No, sir. Then 28 plus 4 like term. How much? 32. 32 minus 16 root 3 divided by 2 minus root 3. Isn't it? Okay. Then 2 minus root 3. Can I take 16 common from here? Yes, sir. Then it will be 2 minus root 3. Is that okay? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Just see now. We reached the last portion. Minus 2. 16. Square root of 16 is 4, na? Yes, sir. 2 minus root 3 will be inside. Am I clear? 2 into 2 minus root 3. So from here, 2 is common, na? Yes, sir. That 2 and these 2 cancel. 2 minus root 3 here will be minus 1 plus minus 2 into root over 2 minus root 3. This is x. So there are two values. Huh? One time here will be plus, one time here will be minus. Am I clear? Yes, sir. Means x equal to say minus 1 plus 2 root over 2 minus root 3 divided by 2 minus root 3. And this one is minus 1 minus 2 root over 2 minus root 3 divided by 2 minus root 3. No need to do anything now, okay? Now you see, this value is completely negative. This part is positive, huh? 2 minus root 3. It is positive. Yes, sir. But in the numerator, minus minus, it will be negative. Am I clear? Yes, sir. But x is what? 10a, na? 10a. 10a was what? 7.5 degree. 7.5 degree lies where? First Yeah. quadrant. First quadrant. So these values
this value is the positive one. See, 2 minus root 3, it will be plus because 2 is greater than root 3. Then this one is also greater than minus 1. See, it is 2 minus root 3. Root 3 is 1 point something. 2 minus this point something. 2 into that. Am I clear? Yes, sir. Then minus 1, still it will be positive. Denominator is also positive. So which one is the accepted value? First one. First one. So you can write 10 7.5 degree equal to 2 minus root 3, and here you can write this one. You can write first 2 into root over 2 minus root 3 plus minus 1. Let's check. Did you get this answer, Partha? No, I think no. No, sir. So little bit of calculation is there, nothing else. Like we have done a 22.5 degree, remember? Yes, sir. Pi by 8, pi by 8. It was multiplied by 2. Yes? Yes, sir. Same thing. Same thing. That's why I told you, you have to remember the value of the new value, whatever I got, 10, 15, 10, 75, sine 18, cos 18, sine 36. Okay. Okay, sir. So that value you have to remember. Understood everyone? Yes, tell. सर लास्ट पार्ट वाला एक बार समझा दीजिए ना, मतलब प्लस माइनस आपने कुछ बोला ग्रेटर देन. इसमें दो वैल्यू है, देख, एक प्लस लिखा एक माइनस लिखा ना. यस सर. तो अभी देख 10 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री लाइस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव ना. यस सर. तो अभी इसमें देख, इसमें 2 माइनस रूट 3. रूट 3 इज व्हाट? 1.73 ना. ठीक है. यस सर. तो ये माइनस ये करने से पॉजिटिव होगा, होगा ना? नहीं, पॉजिटिव होगा. यस सर. यहाँ पे देख -1 -2 इंटू रूट ओवर 2 माइनस 1.73. सो -1 -2 ये माइनस कर 0.27. तो ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर पॉजिटिव होगा. ओके, बट आगे माइनस है, इसका आगे माइनस है, तो अल्टीमेटली ऊपर वाला निगेटिव में रहेगा ना. यस So सर. this whole value will become what? Minus or plus? माइनस. So therefore it is not accepted. But यहाँ पे देख, ये भी पॉजिटिव, ये ग्रेटर है 1 से, तो ऊपर भी पॉजिटिव. तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ये क्या वैल्यू मिलेगा? पॉजिटिव. So that's why this one is accepted value. Understood? सर डिनोमिनेटर नहीं देखेंगे? हाँ देख, डिनोमिनेटर भी तो ग्रेटर है ना. 2 माइनस रूट 3 ग्रेटर देन 0 है ना. यस सर. ये दिखाया ना 2 माइनस रूट 3 क्या है. देख 2 माइनस रूट 3 इज 1.73. तो क्या होगा? ये छोटा माइनस में आएगा ना प्लस में आएगा? प्लस. तो नीचे भी प्लस ऊपर भी प्लस, तो क्या होगा? पॉजिटिव. समझ में आया अभी? यस सर. गुड. सो दिस आर ऑल जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन. कैसे फॉर्मूला अप्लाई करता है अभी देखो. इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज. हाँ बोल. सर आपने जैसे पहले में 2 माइनस रूट 3 लिया, तब मतलब 10 15 का तो दूसरा भी वैल्यू है, हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा वाला लेना है? वो भी ले सकता है. वो लेने से तरह क्या होगा, देख ये अगर लेगा तो इस तरफ क्या है, देख ट्वाइस 10 1 माइनस 2 10 स्क्वायर है ना. तो बहुत लंबा जैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा ना. यस सर. इसीलिए मैंने वो छोटा वाला ले लिया. ये लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ तुमको टर्म अरेंज करना होगा.
समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, इससे ही आंसर आएगा। देखो अभी इसमें और एक चीज बाकी है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। सो मतलब यहां से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। सो मुझे थीटा जानना है, मतलब थीटा क्या होने से ये दोनों प्लस करने से हाफ 1/3 होगा। या तो मान लो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज हाफ, तो मुझे थीटा जानना है। दिस आर ऑल व्हाट ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। समझ में आया? समझ में आया? सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? These are all trigonometric equation. Theta is unknown here. Understood? Yes, sir. Sin theta plus cos theta 1/3. What should be theta? अगर मैं लिखता हूँ x square plus 2x is equal to 10. What is x? ये क्या है? Equation है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So these are algebraic equation, but these are what? Trigonometric. Trigonometric equations. Trigonometric equations. Very good. So now अभी इन लोगों का रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन और रूट्स. Okay. Solutions or roots of trigonometric equation. देखो अभी एक कॉमन चीज देखो, जैसे तुम लोग क्लास 10 में क्या था, अगर मान लो मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है? 60. 60 degree. 60 डिग्री। ये क्लास 10 में था, क्योंकि क्लास 10 में तुम लोगों को एंगल सिर्फ 0 to 90 डिग्री ही चाहिए था, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो तुम लोग थीटा लिख दिया था 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री होने से √3 होता है। सो योर अननोन थीटा इज 60 डिग्री। इज दैट ओके? Yes, Yes. sir. यस सर। नाउ देखो अगर मान लो मैंने बोला, अभी जैसे तुम लोग को पूरा इनफाइनाइट एंगल मिला है, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, ऐसे घूमता रहेगा यहाँ पे। जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि tan 120 का वैल्यू क्या है, ठीक है, tan 120 का वैल्यू देखो, tan 120 अगर तुम लोग फाइंड करना चाहते हो, देखो tan 2 into 90 180 minus 60, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। Yes, आ sir. गया? Minus Yes, sir. √3. 1 सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आता हूँ मैं। मीन्स 180 plus 60 220 डिग्री है, 220 देखो, तो 2 into 90 plus 180 240 लिखो, 180 plus 60 240 है ना? Yes, sir. 2 into 90 plus 60 is 240। देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। वेरी गुड। 290 प्लस समथिंग, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ना, Yes, है ना? sir. तो प्लस Yes, लिखो, sir. 90 के साथ इवन है, 10 10 ही रहेगा, एंड देन अगेन 60, तो अगेन तुमको √3 मिलेगा, मिलेगा ना? Yes, sir. तो मतलब अभी तुम लोग क्लास 11 में देखो, अगर तुमको क्वाड्रेंट अगर मेंशन नहीं करके देता है कि ये रेस्ट्रिक्शन तक तुम थीटा फाइंड करो, अगर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या होगा? थीटा पहले 60 डिग्री हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan 60 is √3, और एक वैल्यू मिला अभी 240 भी मिला, मिला ना? Yes, sir. नाउ सपोज मैं और एक एंगल देता हूँ, देखो 360 प्लस 60 420 देखो, तो ये होगा 4 into 90 360 प्लस 60,
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, 490 प्लस 60, यस सर, तो ऑल पॉजिटिव। 90 के साथ अगेन इवन 10 ही रहेगा। यू गॉट अगेन √3, यस। यस सर, तो मतलब और एक एंगल मिला मुझे ऐसे 420। तो ऐसे देखो तुमको एंगल मिलता ही रहेगा। कहाँ पे मिलेगा? एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा और एक बार थर्ड में मिलेगा, मिलेगा ना? Am I यस clear? सर, तो कैन यू एंड दिस आंसर? कभी इसको खत्म कर सकते हो? नो सर, नो। मतलब अभी इसमें जितना एंगल्स होगा अगर सारा एक साथ लिखेंगे, थीटा एक ब्रैकेट देके मान लो सेट में लिख दे दिया, इससे tan थीटा इक्वल √3, तो थीटा का पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 60, 240, 420 डॉट डॉट डॉट। ये सारा अगर क्लैप करके लिखोगे उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस। क्या बोलता है? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस। एम आई क्लियर? इसका फॉर्म मिलेगा तुमको, इसका फॉर्म मिलेगा कैसे लिखना है। अभी मैं तुम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। सर यस, सिर्फ 10 का या फिर बाकी का भी? नहीं नहीं, सबका। मैंने सिर्फ एक 10 का एग्जांपल दिखाया। अगर tan थीटा √3 बोला है, तुमको बोला है कि थीटा लिखो, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखो, तो तुमको थीटा ये सब दिखेगा कि नहीं? यस सर। 60, 240, 420 ऐसे करके बहुत सारा एंगल्स मिलेगा। वो सारा एंगल तुम कलेक्ट करके लिखोगे, सो उसको बोलते हैं क्या है? जनरल सॉल्यूशन। जैसे और एक दिखाता हूँ, देखो। मान लो इस बार तुमको दिया है sin थीटा इक्वल टू हाफ। तो देखो साइन पॉजिटिव कहाँ पे है? फर्स्ट में एंड सेकंड में ना? यस, अंडरस्टूड? यस सर। साइन पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड में है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में देखो कितना वैल्यू होगा। तो पहले तो डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट मालूम हो जाएगा। साइन किसका वैल्यू हाफ है? 30 डिग्री। एम आई यस क्लियर? सर। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आओगे, देखो अभी टेक्निक में सिखा देता हूँ कैसे तुम उसको फाइंड करोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आओगे? देखो हमेशा 90 को इवन रखना है। हाँ, जो भी क्वाड्रेंट में जाओगे 90 शुड बी इवन मल्टीपल्स। तुम 1 into 90 नहीं लिख सकते हो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 हो जाएगा। 2 into 90 लिखो। 2 into what? 90। 90। समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? यस सर। देन sir. तुमको माइनस होके जाना होगा। माइनस करोगे तभी तुमको सेकंड में मिलेगा ना? यस यस सर, सर। तो कितना डिग्री माइनस करोगे? देखो साइन किसका वैल्यू हाफ है? 30 ना? तो 30 ही माइनस करोगे। दैट मीन्स 180 माइनस 30, 150 का वैल्यू फाइन करो, तुमको हाफ ही मिलेगा। साइन 150 फाइन करो, तुमको हाफ ही मिलेगा। अंडरस्टूड? सर मतलब अगर हाफ का वैल्यू 30 है तो जितना वैल्यू वही मतलब माइनस दे देंगे? अभी तुमको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से कितना डिग्री आ रहा है? 30। 30। अभी तुमको मालूम है साइन पॉजिटिव सेकंड में भी है, तो मतलब क्योंकि ये सब पीरियडिक फंक्शन है ना, isn't यस it? सर। तो वैल्यू तो रिपीट होगा। सो मतलब देखो एक तुमको और एक वैल्यू हाफ मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे कैसे मालूम करोगे? तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आना है तुमको 290 माइनस। अगर मान लो साइन थर्ड में पॉजिटिव है, तो थर्ड में कैसे आओगे? 290 प्लस। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर, 290 प्लस। सेकंड में 290 माइनस, थर्ड में 290 प्लस। अगर मान लो फोर्थ में आया 490 माइनस, 390 प्लस नहीं, 490 माइनस। माइनस। एम आई क्लियर? यस सर, यस सर।
सो सर थर्ड और फोर्थ में तो और मतलब साइन का वैल्यू तो नेगेटिव है ना। नहीं नहीं, मैं साइन का वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ। अगर मान लो कॉस है तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है ना। यस सर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आना है तुमको, 490 देन माइनस, अंडरस्टूड। क्वाड्रेंट में कैसे आना है मैं वो समझा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अगर तुमको सेकंड में आना है 290 माइनस, थर्ड में आना है 290 प्लस, फोर्थ में आना है 490 माइनस। माइनस, अगेन फर्स्ट में जाना है 490 प्लस। Am I clear? यस सर। यस सर। सो मतलब अभी देखो साइन का, देखो साइन थीटा हाफ, तो तुमको मालूम है साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 30 लिख दिया, साइन सेकंड में पॉजिटिव, सेकंड में कैसे आओगे 290 180 माइनस 30, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है, वही जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला मिलेगा वही प्लस या माइनस होगा। यहाँ पे होगा तो प्लस करना होगा, यहाँ पे माइनस करो, सो दैट इज 150। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। फिर अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आओगे तो 490 प्लस 30, प्लस तो 360 प्लस 30 हाउ मच, 390। 90। तो ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा ना। यस सर। Yes, sir. तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये सारा वैल्यू 1 बाय 1 करके लिखोगे, वही क्या होगा उसका जनरल जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस। वेरी गुड। अगर मान लो मैंने अभी कॉस लिखा, पहले ये तुम लोग आइडिया कर लो, कॉस थीटा इक्वल टू मैंने हाफ लिखा, तो कॉस पॉजिटिव का है फर्स्ट एंड फोर्थ में ना, यस isn't सर। it? तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलो 60 डिग्री। यस सर। Am I clear everyone? यस सर। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा 490, कितना माइनस करना होगा, माइनस माइनस 60 डिग्री। Minus 60. एकदम सही, 490 is 360 माइनस 60 करोगे, सो 300 डिग्री। समझ में आया अभी? Yes, sir. यस सर। फिर अगेन तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, अगेन फर्स्ट, जब अगेन फर्स्ट में आओगे 490 प्लस 60, तो 360 प्लस 60 दैट इज व्हाट 420। 420. फिर तुम फोर्थ में आओगे, अंडरस्टूड। यस सर। 2 यस पाई सर। प्लस अनदर 2 पाई, 4 पाई। ये पहले क्या था 490 और एक 490, मतलब 890 माइनस 60, अंडरस्टूड। यस सर। 720 माइनस 60, 0 12 6 660 डिग्री। सो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये खत्म होगा कभी? नो सर। सो जितना एंगल्स तुमको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा सारा 1 बाय 1 करके लिखोगे, उसको बोलते हैं उसका जनरल सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? यस सर। वेरी गुड। यस सर। बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हाँ जनरल सॉल्यूशन के बाद और एक चीज है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा तुम्हारा थीटा शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री एंड अप टू लेस देन 360 और 2 पाई, मतलब एक कंप्लीट एक राउंड में जहां तक तुमको मिलेगा, उसके बाद तुम और क्रॉस नहीं हो सकते हो। तो देखो अभी इसका एग्जांपल देता हूँ, साइन थीटा इज हाफ, तो तुमको एक कंप्लीट राउंड में कहाँ पे साइन का वैल्यू हाफ मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। यस सर। Yes, sir. तो थीटा इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना 30. 30 डिग्री, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो 290 माइनस 30 दैट इज व्हाट 150. और कुछ होगा No, sir. और नहीं, क्योंकि लिमिट देखो 0 से अप टू यहाँ तक, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, तो फर्स्ट में अगेन आ नहीं सकोगे क्योंकि 360 से ऊपर नहीं जा सकते हो। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir.
तो Yes, sir. प्रिंसिपल में एग्जैक्टली तुमको दो जगह में मिलेगा, किसी का भी प्लस वैल्यू दे माइनस वैल्यू दे। देखो साइन हमेशा दो जगह में प्लस दो जगह में माइनस है ना। Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो अभी मैं एक माइनस का वैल्यू देता हूँ, पहले ये ऑब्जर्व करो। हाँ, इसका गहराई में जाने के लिए ट्राई करो पहले, फिर हम लोग उसको मैथमेटिकली बनाएंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही मैं बोला हूं तुम लोगों को, बट इस बार दिया है सपोज साइन थीटा दिया है माइनस हाफ। एम आई क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. तो साइन निगेटिव कहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ में है ना। Yes, sir. इज दैट ओके? पहले आइडेंटिफाई करो Yes. उसका क्वाड्रेंट, क्योंकि एग्जैक्टली दो जगह में प्लस दो जगह में माइनस, सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नेगेटिव। अभी तुमको देखो ये वैल्यू साइन मतलब ये प्लस ना माइनस, उसको दिमाग से हटा दो। ये हाफ साइन किसका वैल्यू हाफ है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री ना। 30. तो साइड में उसको लिख के रखो। अभी देखो तुमको क्या करना है, अभी इसका जब सॉल्यूशन फाइंड करोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा, तो एक वैल्यू कहाँ पे मिलेगा तुमको, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा ना। Yes, sir. sir. Yes, sir. 290 180 प्लस कितना करोगे, 30. 30 degree. क्योंकि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, इसीलिए पहले जो वैल्यू है उसका एक्यूट एंगल क्या है साइड में लिख लो, वही तुमको प्लस माइनस करना है। थर्ड में है 290 प्लस 30, दैट इज हाउ मच 200। 210. अगर साइन 210 निकालोगे तो माइनस हाफ मिलेगा। देखो निकाल देता हूं, देखो साइन 2 इंटू 90 प्लस 30। एम आई क्लियर? Yes, sir. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, 290 प्लस 30 थर्ड में आ गया ना। Yes, sir. Yes, थर्ड में sir. साइन नेगेटिव, 90 के साथ इवन है, साइन साइन ही रहेगा, एंड देन 30 लिखो, तो माइनस हाफ मिला कि नहीं। देखो वैल्यू मिला है ना माइनस हाफ। Yes, sir. तो एक एंगल हुआ 210 डिग्री, और एक साइन नेगेटिव कहाँ पे है, Fourth quadrant. Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आता है, 4 into 90 490 minus 30. वेरी गुड, 490 माइनस होके आना होगा माइनस 30, तो 360 माइनस 30 हाउ मच, 330. 330. तो यही है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? देखो सबको समझ में आया? ये Yes, सर मतलब sir. हमें 4 into 90 करना पड़ेगा फोर्थ में लाने के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने, देखो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, देखो यही चीज तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने से कैसे आना होगा, 290 देन माइनस, ठीक है। यस सर। थर्ड में आने से 290 प्लस, प्लस फोर्थ में आने से 490 माइनस। एम आई क्लियर? Yes. यस सर। अगेन जब फर्स्ट में जाओगे 490 प्लस, हमेशा 90 इवन मल्टीपल्स पे रहना होगा। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। वेरी गुड। नाउ देखो अभी कुछ स्ट्रक्चर होगा, ये तो मैंने पार्टिकुलरली एक एक चीज के बारे में बोला हूं। अभी देखो सबका पहले जनरल सॉल्यूशन लिख लेता हूं। इन लोगों का एक स्ट्रक्चर होता है। नंबर 1, इफ साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन का ग्राफ तुम लोग को मालूम है ना। यस सर। Yes, sir. तो साइन कहाँ पे 0 होता है, 0 पाई Multiples of 180.
यस 2 पाई 3 पाई, ये माइनस पाई माइनस 2 पाई, याद है ना? याद है ना? याद yes है? sir, सो मतलब देन थीटा होगा n पाई, n बिलोंग्स टू व्हाट? z। सारा सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। साइन कहाँ पे जीरो है? देखो जीरो लोगे, n अगर जीरो लोगे, n इज इंटीजर्स, जीरो लोगे तो ये 0 डिग्री आ जाएगा, 1 लोगे तो पाई आ जाएगा, 2 लोगे तो 2 पाई आ जाएगा, -1 लोगे तो माइनस पाई, -2 लोगे तो माइनस पाई। ये सारा जगह में देखो साइन इज जीरो, वो सारा सॉल्यूशन यहाँ पे है ना? Yes, sir. तो जब भी तुमको बोलेगा साइन थीटा इक्वल टू 0, दिमाग में तुमको रखना होगा थीटा का वैल्यू n पाई। एम आई क्लियर? yes sir, बाकी सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. नाउ देखो, अगर इसमें तुमको, अच्छा प्रिंसिपल बाद में बोलता हूँ, 2 नंबर में देखो, इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन cos कहाँ पे 0 था? देखो cos का एक बार ग्राफ फिर से रिकॉल करो, ग्राफ तो स्टडी करना रहे तुम लोग अच्छे से, मैंने वहां पे लिख दिया था, ये 0, ये 90, ये है 180, ये 270, ये 360, ये है अगेन 90, सो दैट इज 450, मीन्स ये है पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, ये -1 पाई बाई 2, ये -3 पाई बाई 2। सो ये सब देखो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री है ना, जहाँ पे Yes. 0 है। yes sir, cos 0 मतलब थीटा, या x लिख सकते हो, cos x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू ये सब एंगल है 90, 390, 590, -190, -390, सो थीटा इक्वल टू तब क्या होगा? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 को कैसे लिखते हैं? 2n Twice plus 1 n whole plus into 1 pi by 2, by pi by 2, where n belongs to z. where n belongs to z। अगर n 0 लोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा ये। n अगर 1 लोगे तो ये 3 पाई बाई 2, n अगर -1 लोगे तो माइनस पाई बाई 2, -2 लोगे तो -3 पाई बाई 2, सारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? यस सर। सबको समझ में आया? yes यस sir, सर। देन टेन थीटा अगर 0 होता है तो देखो, इफ टेन थीटा इक्वल टू 0, टेन इज व्हाट? साइन थीटा बाई कॉस ना, Yes, sir. yes sir, तो दैट इज व्हाट? जाके साइन थीटा 0 आ गया फिर से, yes sir, देखो साइन बाई टेन इज व्हाट? साइन बाई, यहाँ पे लिख सकते हो साइन बाई कॉस, टेन मीन्स साइन बाई कॉस इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वो घूम फिर के साइन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, theta is equal, इजंट इट? सर तो सर sin cos इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, cos 0 होने से माय डियर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, हाँ नीचे 0 आ जाएगा। हाँ सर। नीचे 0 आने से वो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 नहीं होगा। सो ये वैल्यू मस्ट बी 0, साइन थीटा मस्ट बी व्हाट? टेन थीटा 0 होना है मतलब क्या है? sin थीटा 0। तो साइन थीटा 0 होने से थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? n pi. n पाई। इसका ग्राफ एक बार याद करो, ग्राफ एक बार याद करो, टेन थीटा का कहाँ पे 0 है मालूम हो जाएगा। ऑल मल्टीपल्स ऑफ, देखो cos जहाँ पे 0 है वहां पे 10 अनडिफाइंड, cos कहाँ पे 0 था? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, दिस आर ऑल असिम्प्टोट, याद है ना?
Yes, sir. ये सब देखो, ये सब देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये 0 डिग्री, देन ये क्या है, pi, पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, मतलब क्या है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई में 10 क्या होता है, 0. 0. 0. 0। सो देयरफॉर 10 का भी वही सॉल्यूशन है जो साइन का होता है। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, अभी देखो अगर इन तीनों का साइन 0, कॉस 0, टेन 0 याद रखने से बाकी सेक कोसेक कट हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे सेक देगा तो सेक देने से मैं 1/cos कर लूंगा, ठीक है, अंडरस्टूड। Yes. Yes, sir. वो कॉस से हम लोग सेक को कॉस में लाके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसलिए ये 3 जानने से ही हो जाएगा। देन अगर मान लो साइन थीटा इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 and pi. देखो, मतलब एक कंप्लीट राउंड में आना होगा, बिकॉज थीटा क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, 0 से स्टार्ट होके अप टू लेस देन 2 पाई, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। Yes, sir. तो देखो अभी तुम डिराइव भी कर सकते हो यहाँ से, जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू क्या था, n पाई था, n बिलोंग्स टू z। अभी यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एंगल होगा, देखो अगर n तुम 0 लेते हो तो 0 डिग्री हो जाएगा, इफ n 0, तो 0 इंटू पाई 0, तो ये इसके अंदर आ रहा है, 0 इंक्लूड ये होगा। अगर n 1 लेते हो पाई, पाई भी इसके अंदर है। अगर n 2 लेते हो 2 पाई, n 3 लेते हो तो 3 पाई डॉट डॉट, बट ये सब इसके अंदर नहीं है, देखो 2 पाई इंक्लूड नहीं है, isn't it? Yes, sir. Yes. 0 से लेस देन 2 पाई तक है, ये इंक्लूड नहीं है। तो 2 पाई का लेस देन जो जो होता है, मतलब 0 एंड व्हाट, 0 एंड पाई, समझ में आया? सर फिर से समझा दीजिए। तुमको अभी साइन थीटा 0 इस रेंज के अंदर डालना है, इस रेंज के 0 से लेस देन 360 तक, 0 से स्टार्ट होगा एग्जैक्टली, बट लेस देन 360 तक साइन कहाँ पे 0 है। देखो अगर n तुम यहाँ पे 0 डालते हो तो थीटा क्या होगा, 0. तो ये इसके रेंज में है ना। Yes, sir. थीटा अगर n 1 डालते हो तो क्या होगा, पाई, Yes, sir. ये भी इसके अंदर है। Yes, sir. अगर n 2 डालोगे तो 2 पाई हो जाएगा, बट 2 पाई इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 पाई से लेस देन तक, तो मतलब इसके बाद और नहीं होगा, माइनस तो होगा ही नहीं क्योंकि एंगल पॉजिटिव एंगल है। देखो प्रिंसिपल हमेशा 0 डिग्री से लेस देन 360 तक। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. सो ओनली 2 ही एंगल इसको सपोर्ट करेगा, 0 डिग्री एंड व्हाट 180 डिग्री। Am I clear? Yes, sir. cos थीटा के लिए एक बार सोच के देखो तो cos थीटा 0, उसका प्रिंसिपल cos थीटा इक्वल टू 0, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन था ये, थीटा इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 पाई बाई 2। अभी n का वैल्यू पुट करते जाओ और रेंज इसके अंदर लेके आओ, n बिलोंग्स टू z, 0 पुट करो फर्स्ट n, 0 पुट करने से क्या होगा, देखो
एन जीरो पुट करने से क्या होगा, जीरो से हमेशा डालोगे क्योंकि निगेटिव एंगल नहीं है अभी, जीरो से लेस देन 360, एन जीरो डालो, क्या होगा यहाँ पे π/2 π/2 0 + 1 1 π/2, तो ये 90 इसके अंदर है ना। Yes, sir. बाकी समझ Yes, में आ रहा है sir. तुम लोगों को? Yes, sir. yes sir yes देन एन वन डालो, ओके जीरो ले लिया, इसके अंदर आ गया, एन वन डालो यहाँ पे 3 π/2 3 3 π/2, π/2 ये इसके अंदर है कि नहीं चेक करो। sir है Has 90 into 3 270 इसके अंदर है, यस। देन अगर n में 2 लेता हूँ क्या होगा, देखो 5 π/2 5 5 π/2, फिर देखो इसके अंदर है कि नहीं, sir 5 नहीं into है 180/2 90 5 जा 450, ये इसके अंदर नहीं है, सो मतलब और नहीं होगा, यही दोनों होगा। थीटा इक्वल टू π/2 एंड 3 3 π/2 समझ में आ रहा है अभी? yes Yes, sir अभी फिर tan थीटा इक्वल टू 0, देखो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो जनरल से प्रिंसिपल तुम लोग डिराइव कर सकते हो। इफ tan थीटा इक्वल टू 0, प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू, बोलो तो कोई एक बोलो, फाइंड करो, ट्राई करो। इसका जनरल सॉल्यूशन था n पाई, n बिलोंग्स टू z, अभी तुमको वैल्यू इसके अंदर लाना है। sir 0 and π same होगा सर 0 and साइन की जैसे सर 0 and π 0 and पाई, वेरी गुड, साइन जैसा ही है, वेरी गुड। 0 इंक्लूड है, 10 0 इज 0, 10 180 इज ऑल्सो 0, उसके बाद 2 पाई, बट 2 पाई यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तुम्हारा रेंज 0 से शुरू होगा लेस देन 360 तक, उसके अंदर सिर्फ ये दोनों एंगल ही आता है, 0 एंड पाई। समझ में आया? yes sir yes sir सबको समझ में आया? yes yes sir sir. वेरी गुड। नाउ देखो, अभी मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन तुम लोगों को पूछूंगा, तुम लोग सिर्फ मुझे उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलोगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1 cosec x equal to -2, number 2 cot x equal to -3, and another one suppose sec x equal to 2। देखो एक में दिखा देता हूं, cosec x -2, तो इसमें साइन में लेके आओ, cosec is 1 by sin, है ना? यस, yes sir तो sin x फाइंड करो, -2 sin x equal to 1, तो व्हाट विल बी sin x? sin x is what? minus -हाफ। अभी तुमको एक कंप्लीट राउंड में सिर्फ एंगल फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। साइन कहाँ पे नेगेटिव? Third and fourth quadrant. थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। देखो पहले इसका देख लो, वैल्यू देख लो, साइन इसमें वैल्यू हाफ है, साइन किसका वैल्यू हाफ होता है? π/6, 30 मीन्स व्हाट? π/, 5/6 वेरी गुड। नाउ देखो अभी लिखोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू, जब थर्ड में आओगे तो कैसे आना पड़ता है? 290 2 into plus 90 90 plus plus theta वेरी गुड। 2 into 90 मीन्स पाई, अभी लिखो पाई। हाँ, अभी रेडियन में लिखने के लिए भी ट्राई करो। 290 इज व्हाट? पाई ना, yes yes sir प्लस 30 जो लिखोगे 30 मीन्स π/6, ये एक एंगल हो गया इसका, इसको बाद में प्लस करेंगे।
और एक एंगल कहाँ पे है? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आना होगा? 4 pi minus pi by 6. 5 by 6. 490 means 2 pi 360. ओके, ये 490 मतलब 4 into pi by 2 ना, Yes, sir. so that is ultimately what, 2 pi. ठीक है, Yes, sir. 2 pi, फिर क्या करना होगा, प्लस ना माइनस? Minus. माइनस कितना, पाई बाई 6. डिग्री में लिखने से भी होगा, बट ट्राई टू राइट अगेन रेडियन. 6 pi plus pi 7 pi by 6. Am I clear? Am I clear? यस सर। Yes, sir. 6, ये क्या होगा? 11 pi by 6. 11 pi by. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. ये ट्राई करो, cot x minus root 3. सबको ही ट्राई करो. 10 लेके आओ, हाँ, क्योंकि हम लोग 3 फॉर्मूला किया है, साइन cos 10. तो cot को पहले 10 बनाओ, फिर देखो 10 कहाँ पे निगेटिव है. आया किसी का आंसर? Sir, 5 pi by 6 and 11 pi by 6. cot x माइनस रूट 3, तो 10x क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई रूट 3. Yes, sir. ओके, तो 10 किसका वैल्यू 1 बाई रूट 3 है? 30 degree. 30 पाई बाई 6 मैंने लिख लिया. अभी तुम क्वाड्रेंट में देखो, 10 कहाँ पे निगेटिव है? Second and fourth quadrant. Second and fourth. वेरी गुड. सो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आओगे तो कैसे आना होगा? 290 माइनस Pi minus pi by 6. 290 मीन्स पाई माइनस पाई बाई 6. गुड. फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 pi minus pi by 6. 2 pi minus pi by 6. Well, 6 pi minus pi, again 5 pi by 6, again 11 pi by 6. I think now you understand. Understood now? Yes, sir. यस सर। The next one देखो, sec x equal to 2. cos बनाओ उसको पहले. cos बनाओ. Sir, one is pi by 6 and the other is 5 pi by 3. एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यस.
बिकॉज पॉजिटिव है. sec is what? sec x2. sec means cos x होगा 1/2. so x cos किसका वैल्यू यहाँ पे 60 ना, 60. pi/3. फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आ ही गया. और एक क्वाड्रेंट है, बोलो तो कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट. 4. फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 pi 2 pi minus pi/3. minus pi/3. Good. 6 pi minus pi, 5 pi/3. These two angles will give the value of cos x half from 0 to less than 360. Understood now? Yes, sir. I think सबको अभी ये कॉन्सेप्ट मालूम हो गया. वाह, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ देखो, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? देखो, अभी इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग. जैसे हम लोग, ये एक्चुअली सिलेबस में नहीं है अभी, लेकिन फिर भी जान के रखो. साइन एक्स अगर हाफ दे दिया, तुमको बोला कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो. ठीक है, यू फाइंड नाउ जनरल सॉल्यूशन. जैसे अभी अभी मैंने दिखाया था, एक्स का वैल्यू 1 होता है क्या? 30 डिग्री, याद है ना? Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. पहले ही बोला था. फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव 180 माइनस 30 150. देन अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, नॉट 390. प्रिंसिपल, जनरल सॉल्यूशन 390. तो ये कितना लिखेंगे ना? isn't it? Yes, देयर sir. शुड बी वन फॉर्म. जैसे साइन थीटा अगर 0 हुआ तो तुम लोग लिख दिया थीटा एन पाई. तो इसमें सारा सॉल्यूशन घुसा हुआ है ना? Yes, sir. Yes. तो ऐसा एक इसके लिए भी होगा. अगर वो स्ट्रक्चर्ड वाइज है, उसके अंदर हम लोग एन डालते रहेंगे तो ये सारा वैल्यू हम लोग को मिलता रहेगा. Am I clear? Yes, sir. तो देखो, मैं वो दिखाता हूं अभी. देखो, तो मतलब अभी फॉर्म होगा. देखो, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, मैं जस्ट साइन एक्स इस तरफ तुमको लिखना होगा. पहले साइन किसका वैल्यू हाफ है? पहला वाला ही ले लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला. साइन 30 मतलब साइन pi/6. तो ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के टाइप में. साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई. तो अभी देखो, इसे कैसे हम लोग जनरेट करेंगे ये स्ट्रक्चर. सो ये एक थ्योरम जैसा होता है. इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, देन हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड? Yes. साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई मैं पहले लिख देता हूँ. देन एक्स इक्वल टू क्या होगा, मुझे एक्स फाइंड करना होगा. एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू वाई. एन बिलोंग्स टू जेड. पहले ये स्ट्रक्चर तो लिख लो, फिर इसको डिराइव करते हैं. देखो, व्हेन साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, देन जनरल सॉल्यूशन है. x equal to n pi plus minus 1 to the power n into y, where n belongs to z. Understood? सर फिर से समझा दीजिए. अगर मान लो sin x equal to sin y हुआ, अभी तुम फिलहाल ये याद रखो. Then x equal to what? n pi plus minus 1 to the power n into y. n belongs to z. सारा x का वैल्यू इसके अंदर घुसा हुआ है. तो ये कैसे आया, मैं वो निकाल के दिखाता हूँ. एंड फिर हम लोग देखो, अगर मैं ये लिखता हूँ साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो तुरंत मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन pi/6. ठीक है, साइन pi/6 इज व्हाट? 30. Half. हाफ. तो नाउ ये देखो, इस फॉर्म में आ गया. साइन एक्स इक्वल टू
साइन वाई, तो अब इस स्ट्रक्चर में डालेंगे x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू ये y। अगर तुम n का वैल्यू डालते जाओगे अभी तुमको जो वो पहले मैं बोला था x इक्वल टू 30, देन 180 माइनस 30 150, देन 390, ये सब था ना, यस सर। वो सब वैल्यू यहाँ से मिलता जाएगा। देखो तुम n पहले 0 लो, सपोज n 0 ले लिया, क्या होगा देखो π/6। पाई बाई 6, एक वैल्यू आ गया 30। यस सर। Am I clear? यस सर। मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू था हाफ, तो इसलिए पॉजिटिव कहाँ पे है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट ना, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट का सारा एंगल यहाँ पे आ जाएगा। एन इस बार 2 ले लो, सॉरी 1 ले लो, एन 1 ले लो यहाँ पे, ये क्या होगा पाई ना, ये क्या होगा पाई यस yes सर। sir, प्लस -1 टू द पावर n इज 1 पाई बाई 6, तो पाई ये -1 ही होगा, तो माइनस पाई बाई 6, सो दिस इज व्हाट 5 पाई बाई 6। फाइव पाई का वैल्यू क्या है 180 बाई 6, कितना हुआ 150 आया ना देखो। यस सर। अगर n 2 लोगे तो 2 लो, n 2 लेके यहाँ पे डाल के देखो, ये होगा 2 पाई -1 टू द पावर 2 पाई बाई 6, 2 पाई ये प्लस हो जाएगा प्लस पाई बाई 6, तो 6 12 प्लस 1 13 पाई बाई 6 वही है। अगर इसको तुम वैल्यू डालोगे मिल जाएगा, देखो 30 मल्टीप्लाई करो 390, है ना, वो देखो है ना। Yes, sir. तो ये सारा एंगल जो है तुमको मैन्युअली अभी फाइंड नहीं करना है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर तो याद रखना है। Am I clear? यस सर। yes sir, देखो अगर तुमको वो सारा एंगल 1 बाय 1 फाइंड करना है तो तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मुझे कहाँ से एंगल फाइंड करना होगा। साइन हाफ, मुझे जनरल सॉल्यूशन बोला फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जितना एंगल्स होता है सब लिखना होगा। Am I clear? तो ये 1 बाय Yes, sir. 1 करके ये सारा एंगल हो रहा है, बट ऐसे तुम तो उसको कभी एंड नहीं कर पाओगे, कर पाओगे? नो सर। तो दैट्स no, sir. देयर इज वन फ्रेम, अगर उस फ्रेम में तुम डाल दोगे वो सारा वैल्यू आ जाएगा, ये है उसका फ्रेम। व्हेन sin x इक्वल टू sin y देन x इक्वल टू सॉल्यूशन n पाई प्लस -1 टू द पावर व्हाट n into y। यस। Am I clear? यस सर। yes sir, Yes, sir. इसका डिराइवेशन तुम लोग कर सकते हो आराम से, देखो कैसे डिराइव करोगे। अच्छा ठीक है, और एक दिखा लेता हूँ, उसका डिराइवेशन में दिखा देता हूँ। डिराइवेशन इज वेरी इजी क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला करके आया है हम लोग। देखो अगर इफ cos x इक्वल टू cos y टाइप में आएगा तब इसका जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू z। तो cos पॉजिटिव कहाँ पे है, अगर मान लो पॉजिटिव वैल्यू दिया, सपोज पॉजिटिव वैल्यू दिया यहाँ पे, जैसे cos x इक्वल टू मान लो दिया √3/2, तो डायरेक्ट लिखोगे नाउ cos x इक्वल टू cos किसका वैल्यू √3/2 30 डिग्री। यस, यस cos x इक्वल टू cos π/6। तो मतलब तुमको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जितना वैल्यू से सारा यहाँ से मिल जाएगा। सो देखो मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूँ, देखो
देखो cos x इक्वल टू cos y, cos y इस तरफ लेके आओ 0. व्हाट इज cos c माइनस cos d? फॉर्मूला याद है? -2 cos x plus नो -2 sin sin c plus d by 2 by sin c minus. वेरी गुड, ये सब याद रहना होगा. C and D means x and y. Am I clear? आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now product of this equal to 0 means -2 तो कभी 0 नहीं होगा. So that means x plus y by 2 into sin x minus y by 2, ये दोनों पार्ट 0 होना ही है, क्योंकि ये तो कभी 0 नहीं है. -2 ये 0 है क्या? नो सर. नो. तो प्रोडक्ट ऑफ दो टर्म अगर 0 है, तो अगर तुमको मालूम है जैसे 3x इक्वल टू 0, तो तुमको मालूम है 3 इज नॉट 0, तो x डेफिनेटली इक्वल टू व्हाट? 0. So when this into this equal to 0, -2 is not 0, so this whole part equal to 0. Now see, there are product of two terms, this into this. When this into this equal to 0, either this 0 or this 0, or maybe both 0. So sin x plus y by 2 equal to 0, or sin x minus y by 2 equal to 0. Hope you understand up to this. यस सर. सर -2 का क्या करेंगे? Hope you understand up to this. सर -2 का क्या करेंगे? -2x अगर 0 है तो क्या लिख सकते हो? यहाँ से क्या लिखते हो तुम लोग? X is equals to 2. -2 into x अगर 0 है तो डेफिनेटली x इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? यस सर. Yes, sir. क्योंकि -2 तो कभी 0 नहीं है ना. Yes, sir. So that's why देखो -2 into this 0 means you can, or you can take -2 on that side. 0 by -2 is what? 0 only. Yes. Yes, sir. तुम लोग जैसे लिखते हो ना 3x equal to 0. What is x? 0 by 3 equal to what? 0 only. Yes. Yes, sir. Wait. सेम कॉन्सेप्ट है देखो. तो मतलब ये कभी 0 नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म मस्ट बी 0. अगर इसका प्रोडक्ट 0 होना है तो कोई भी एक 0 होना होगा ना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो अभी वहां से देखो, अभी देखो ये इक्वल टू 0, इसको पूरा को x समझो. साइन x इक्वल टू 0. व्हाट इज x? n pi. यस, x साइन x 0, तो तुरंत x इक्वल टू n पाई लिखना होगा. सो x मींस हियर x प्लस y बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? n pi. n पाई. और इस तरफ क्या होगा? ये भी x माइनस y बाई 2 इक्वल टू n पाई. दोनों में n बिलोंग्स टू z. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस y 2n पाई, x माइनस y 2n पाई. Am I clear? Understood? Yes, sir. तो यहाँ से x फाइंड करो. x इक्वल टू, आई नीड x 2n पाई प्लस y, वहां से x लिखो, सॉरी ये माइनस होगा, और यहाँ पे 2n पाई माइनस y, है ना? अंडरस्टूड? Am I clear? Yes. Sir, that should be 2n pi plus y. This is plus y. Good. This is minus y. ठीक है?
Yes, sir. नाउ देखो दोनों को कंबाइन करो. If you combine both, combining both, x equal to 2n pi minus n plus, I can write plus minus. Can I write? एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा? Plus minus. प्लस माइनस वही था, देखो मैंने स्ट्रक्चर में वही लिखा था, देखो लिखा था ना. Yes. Yes, वही sir. लिखा था, देखो. यस सर तो मतलब अगर तुमको ऐसे कभी देता है cos x इक्वल टू सपोज दिया है 1/√2, तो लिखो cos पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलता है. जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मिलेगा वही लिखना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलता है. कितना? cos pi/4 45 ना. Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो ये हो cos x इक्वल टू cos y, ये फॉर्म में आ गया ना. Yes, sir. cos x इक्वल टू cos y फॉर्म में आ गया. सो तुरंत लिखो x इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस n pi प्लस माइनस y. व्हाट इज y? 5/4. n बिलोंग्स टू z. तो तुम n का वैल्यू डालते जाओ तो तुमको सारा वैल्यू 1/1 मिलता जाएगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर सो दिस इज कॉल्ड Yes, sir. इसका जनरल सॉल्यूशन. सो जनरल सॉल्यूशन का ये स्ट्रक्चर होता है खुद का. वो स्ट्रक्चर बना लो, फिर सिर्फ वहां पे वैल्यू डाल दो. 1/1 तुमको मैन्युअली फाइंड नहीं करना है. Am I clear? Yes, sir. यस सर अगर 10x इक्वल टू 10y होता है, देखो उसका होता है ये. इफ 10x इक्वल टू 10y, देन x इक्वल टू लिखो n pi प्लस y. n बिलोंग्स टू z. ये इसका स्ट्रक्चर. इसका एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन. एक तो एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ. देखो जब खाली बोलेगा सॉल्व, रिमेंबर यू हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन. अगर प्रिंसिपल वर्ड मेंशन नहीं किया, यू ऑलवेज हैव टू फाइंड व्हाट? जनरल General solution. सॉल्यूशन. देखो एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ. सॉल्व बोला है, मतलब immediately you have to find the general solution. Sin 2x minus sin 4x plus sin 6x is equal to 0. Solution. ये सारा इवन है ना. देखो 2x 4x 6x all angles are what? Even. इवन इवन एंगल. तो इवन एंगल होने से भी तुमको देखो कभी कभी कुछ अगर अरेंजमेंट करोगे तो बहुत इजीली आंसर तो मिल जाता है. देखो 6 and 2, 6 plus 2 is what? 8. 8. Eight. डिवाइडेड बाय 2 रहता है. Yes, sir. 3 plus d by 2. तो 8/2 4 मिल जाएगा ना. Yes, sir. Yes. तो ये आइडिया तुमको बिल्डअप करना होगा. मतलब 6x and 2x को एक साथ रख के फॉर्मूला में डाल देता हूँ, उसमें ये टर्म मिल जाएगा तो कॉमन आ जाएगा. Am I clear? Yes. सर लास्ट में डिवाइड ही मतलब करवाना है. साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? 2 sin c plus d by 2 है कि नहीं? यस सर c plus d by 2. c 6x सपोज, d 2x. 6x plus 2x by 2 क्या होगा? 4x हो जाएगा ना. यस सर तो इसलिए एक काम करो, इन दोनों को एक साथ रखो. ये प्लस साइन 6x एंड देन प्लस साइन 2x, देन माइनस साइन 4x. इसको फॉर्मूला में डालो.
ये दोनों साइन सी प्लस साइन डी, ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई टू, देन कॉस व्हाट सी माइनस डी बाई टू, 0। 8x बाई टू कितना होगा 4x, 4x बाई टू कितना होगा 2x माइनस साइन 4x। क्या कॉमन आएगा देखो, sin 4 2 cos 2x minus 1 equal to what 0। am I clear? Understood up to this? yes sir So either लिखो product of these two terms 0 means what, either sin 4x 0 or 2 cos 2x minus 1 0। okay, yes, 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 yes। yes sir So now यहाँ से देखो 2 cos 2x इक्वल टू 1 इस तरफ ले लो, तो cos 2x इक्वल टू हाफ बना लो, तो ये cos 2x इक्वल टू हाफ है। cos किसका वैल्यू हाफ, pi by 3 पाई बाई 3 डाल दो, मतलब एक फॉर्म cos x इक्वल टू cos y आ गया, एक फॉर्म sin x इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे sin x means 4x, sin x equal to 0, so x means 4x, 4x equal to what, n pi n pi, good। तो x निकालना है, x equal to क्या होगा n pi by n pi by 4 4। और यहाँ से x means twice x, cos x equal to cos y, फॉर्म तो याद करो, x equal to twice n plus pi, minus plus minus y y means what, y means what, pi by 3 pi pi by by 3, cos x, x means 2x equal to 2n pi plus minus y is pi by 3। तो यहाँ से भी तुमको x निकालना होगा, बिकॉज वेरिएबल इज x। तो दोनों को डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2 होने से n pi 2 2 कैंसिल, प्लस माइनस ये हो जाएगा pi by 6। यस यस, yes yes sir सो मतलब सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू n pi by 4 और n pi plus minus pi by 6, n belongs to what, n belongs to integers integer yes, is that okay? yes sir yes sir ये क्वेश्चन कर लो, घर में ट्राई करना। नंबर 2 लिखो, सिंपल क्वेश्चन है, cos 3x प्लस cos x सॉल्व, माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ऑड ऑड है, तो ये दोनों को ही तुमको एक साथ रखना होगा, आइदर ऑड ऑड या तो इवन इवन। तो यहाँ पे ये दोनों ऑड है, ये इवन है, तो ये दोनों को ही एक साथ रखना होगा। 3x प्लस x 4x बाई 2 ये मिल जाएगा, ठीक है। okay sir तो ये करके रखोगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद नया चैप्टर में चला जाऊंगा, ठीक है। okay sir ओके सर। फॉर्मूला सब याद कर लेना बाय द टाइम। जैसा फॉर्मूला है इसका, की टू गेट सक्सेस इन ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। okay sir ओके बाय। ओके सर, थैंक यू sir. सर। थैंक यू, Thank you, sir. Bye. बाय।